مدینہ سو رہا تھا۔ مدینے کی خاموش گلیوں میں رات کی خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر اسی خاموشی کے پردے میں ایک ناپاک سازش رچائی جا رہی تھی جس سے عرش بھی کانپ اٹھا۔ ایک ایسی سرنگ جو کسی ہیرے جواہرات کی تلاش میں نہیں تھی، بلکہ وہ سرنگ کائنات کے سب سے مقدس جسم وجود اطہر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے کھودی جا رہی تھی۔ اسی رات کی خاموشی میں ہزاروں میل دور ایک بادشاہ کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ہیں، مگر منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو شخصوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور زبان رسالت سے یہ الفاظ نکل رہے تھے: محمود، مجھے ان دو کتوں سے بچاؤ۔ وہ بادشاہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھا۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ بڑے سے بڑے بادشاہوں کے مقبرے لوٹ لیے گئے، فرعون مصر کی لاشیں عجائب گھروں میں تماشا بن گئی اور سکندر اعظم کی قبر کا نشان تک مٹا دیا گیا۔ دنیا کے ہر خزانے اور ہر تخت کو زوال آیا، لیکن 1400 سال سے روح زمین پر ایک مقام ایسا ہے جس کی حفاظت کے لیے زمین اور آسمان خود ڈال بن جاتے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ ہے اور یہ روضہ رسول ہے، لیکن تاریخ کے سینے میں 1164 عیسوی کی وہ رات آج بھی کانٹے کی طرح چبھتی ہے۔ شام کے شہر دمشق میں ایک بادشاہ کی آنکھ کھلی۔ یہ بادشاہ سلطان نور الدین زنگی تھے، عالمی اسلام کے وہ حکمران جن کی ہیبت سے صلیبی بھی کانپتے تھے۔ لیکن اس رات سلطان اپنے بستر سے پسینے میں پست ہو کر اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے ہیں، مگر منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو شخصوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جن کے چہرے سرخ اور آنکھیں نیلی تھیں، اور زبان رسالت سے یہ الفاظ نکل رہے تھے: محمود، مجھے ان دو کتوں سے بچاؤ۔ سلطان نور الدین زنگی چیخ مار کر اٹھ بیٹھے۔ جسم کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ سلطان نے وضو کیا، نفل پڑھے اور دوبارہ لیٹ گئے، مگر پھر سے وہی خواب، وہی دو چہرے، وہی پکار: مجھے ان دو کتوں سے بچاؤ۔ 3 بار ایسا ہوا۔ اب سلطان کے لیے دمشق میں رکنا ایک لمحہ بھی مشکل ہو گیا۔ رات کے آخری پہر انہوں نے اپنے وزیر جمال الدین موسنی کو طلب کیا۔ یہ وزیر صرف ایک مشیر نہیں بلکہ ایک صاحب بصیرت انسان تھے۔ سلطان نے روتے ہوئے اپنا خواب بیان کیا۔ وزیر نے فوراً کہا: اے سلطان، آپ ابھی تک یہاں لیٹے ہو؟ مدینہ میں کوئی بہت بڑی آفت آئی ہے، آپ کو فوراً وہاں پہنچنا ہوگا۔ اسی وقت حکم جاری ہوا: سب اپنے اپنے قافلے تیار کر لو مدینہ روانہ ہونے کے لیے، اور سونا جواہرات بھی ساتھ رکھ لو۔ یہ کوئی سرکاری دورہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک خفیہ مشن تھا جس کے لیے سلطان نے 20 بہترین گھڑ سوار اور بہت سارا مال و دولت ساتھ لیا، اور دمشق سے اپنا قافلہ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ سفر جو مہینوں میں طے ہوتا تھا، سلطان نور الدین زنگی نے 16 دن میں طے کر لیا تھا۔ وہ راستے میں کہیں نہیں رکے، نہ آرام کیا اور نہ ہی سوئے۔ ان کی آنکھوں میں صرف ایک ہی تصویر تھی، وہ 2 خوفناک چہرے۔ جب سلطان مدینہ پہنچے تو شہر کی فضا سوگوار تھی۔ سلطان نے سیدھا مسجد نبوی کا رخ کیا۔
और रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था जो रुक नहीं रहा था। लोग हैरान थे कि शाम का बादशाह अचानक यहाँ कैसे आया। सुल्तान ने अपने वजीर से कहा, मैं किसी को बता नहीं सकता कि मैं यहाँ किस मकसद के लिए आया हूँ। मुझे यहाँ बस वो 2 चेहरे तलाश करने हैं। सुल्तान ने एक मंसूबा बनाया। ऐलान किया गया, सुल्तान मदीना के तमाम शहरियों को अपने हाथ से तोहफे देने आए हैं। मकसद ये था कि मदीना का हर शख्स सुल्तान के आगे से गुजरे। और अगले दिन मस्जिद नबवी में हजूम लग गया। शहर का हर बूढ़ा बच्चा जवान कतार में खड़ा था। सुल्तान हर चेहरे को गौर से देखते और फिर मायूसी से नजर हटा लेते। घंटे गुजरते गए, लोग आते रहे और तहाइफ लेते गए, मगर वो 2 चेहरे कहीं भी नजर नहीं आए। सुल्तान बहुत मायूस हुए। शाम हो चुकी थी, खजाना भी खाली हो गया था, मगर सुल्तान की तलाश अभी भी अधूरी थी। वो परेशान थे कि कहीं ख्वाब महज वहम तो नहीं, मगर दिल गवाही दे रहा था कि खतरा अभी टला नहीं। सुल्तान ने मदीना के गवर्नर से बात की। क्या कोई ऐसा शख्स बाकी है जो मुझसे ना मिलने आया हो? गवर्नर ने सोचा और जवाब दिया, नहीं सुल्तान, सब आ चुके हैं। सिवाय 2 मगरबी यानी मोरक्कन ज़ाहिरीन के, वो बहुत नेक और मुत्तकी लोग हैं। वो किसी से कुछ नहीं लेते बल्कि वो खुद खैरात करते हैं। ये सुनते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आंखों में चमक आ गई। उनका दिल जोहर से धड़का। उन्होंने हुक्म दिया, इन दोनों को मेरे पास लाओ। वो तो रोजा रसूल के पास एक मकान में रहते हैं और दिन रात इबादत में मशगूल रहते हैं। सुल्तान ने कहा, तो हम खुद उनके पास जाएंगे। सुल्तान अपने मुहाफिजों के साथ मस्जिद नबवी के करीब छोटे मकान में दाखिल हुए। वहां वही 2 शख्स मौजूद थे। लंबी दाढ़ियां, हाथों में तस्बीह और चेहरों पर बज़ाहिर नूर था। लेकिन जब सुल्तान की नजर इन 2 चेहरों पर पड़ी तो इनके पैरों तले जमीन निकल गई। ये वही 2 चेहरे, वही सुर्ख रंगत, वही नीली आंखें थी। ये वही शैतान सिफत इंसान थे जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखाया था। सुल्तान ने गुस्से पर काबू पाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने मासूमियत से जवाब दिया, हम मराकिन से हज के लिए आए थे और अब नबी के पड़ोस में रहने की सादत हासिल कर रहे हैं। सच बोलो, इससे पहले मैं सख्ती करूं। हम कसम खाकर कहते हैं, हम तो बस नबी के पड़ोस की सादत नसीब कर रहे हैं। सुल्तान ने कमरे के अंदर झांका तो सिर्फ कमरे में चंद किताबें और जमीन पर मुसल्ले बिछे हुए थे। बज़ाहिर सब कुछ ठीक था और लोग कहने लगे, आखिर सुल्तान इन लोगों पर शक क्यों कर रहा? ये तो बहुत नेक और मुत्तकी लोग हैं। लेकिन सुल्तान का यकीन पुख्ता था। वो खुद आगे बढ़े, कमरे में बिछे हुए मुसल्ले को उठाया तो नीचे एक फर्श था। उन्होंने जब फर्श को चेक किया तो आवाज खोखली आई। सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, यहां से जल्दी खुदाई करो। जब सिपाहियों ने मिट्टी हटाई तो नीचे एक लकड़ी का तख्ता था और जब वो तख्ता हटाया गया तो वहां मौजूद हर शख्स की चीख निकल गई। ए मेरे खुदा, ये लोग अंदर कौन सी नापाक साजिशें कर रहे थे? नीचे एक गहरी और अंधेरी सुरंग थी। ये सुरंग उस कमरे से शुरू होकर सीधी रोज़ाए रसूल की दीवारों तक जा रही थी। सिर्फ चंद गज का फासला रह गया था। अगर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के आने में एक दिन की भी ताखीर हो जाती तो ये जालिम अपने नापाक मकसद में कामयाब हो जाते। सुल्तान ने उन दोनों को अपनी कस्टडी में लिया, जिससे वो दोनों कांपने लगे।
तुम लोगों को यहाँ पर किसने भेजा? सुल्तान की तलवार उनके सर पर थी। उन दोनों ने सब सच सच उगल दिया। उन्होंने एतराफ किया, हम मुसलमान नहीं, ईसाई हैं। हमें हिंडलिस के शहर से ईसाई हुक्मरान ने भेजा है। हमारा मंसूबा कि हम नबी का जिस्म निकालकर यूरोप में ले जाकर मुसलमानों को ज़हनी शिकस्त दें। वो रात को सुरंग खोदते थे और मिट्टी को चमड़े के थैले में भरकर मदीना से बाहर फेंक आते थे। वो बजाय रोजे रखते और नमाजें भी पढ़ते थे। ये सुनकर वहां हर मुसलमान की आंखों में खून भर आया। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुमने हमारे नबी की गुस्ताखी की है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ज़ारो कतार रोने लगे। या अल्लाह, तेरा करोड़ों बार शुक्र है, तूने इस पाक खिदमत के लिए इस नाचीज जिंदगी को चुना। अगली सुबह मदीना की तारीख का एक इबरतनाक दिन था। इन दोनों मुजरमों को उसी जगह लाया गया जहां उन्होंने ये नापाक साजिश रचाई थी। सुल्तान के हुक्म पर इन दोनों को मस्जिद नबवी के बाहर इबरतनाक सजा दी गई। उन्हें कत्ल कर दिया गया ताकि रहती दुनिया तक कोई दोबारा ऐसी जिसारत करने का सोच भी ना सके। ये फितना तो खत्म हो गया था, लेकिन सुल्तान का दिल अब भी बेचैन था। उन्हें डर था कि मुस्तकबिल में कोई दोबारा ऐसा हमला न करे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो आज भी मदीना की जमीन में महफूज है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने वजीर से कहा, मैं मदीना छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक मैं इसे महफूज न बना दूं। उन्होंने माहिर तामीरात यानी आर्किटेक्ट्स को बुलाया और हुक्म दिया, यहाँ से शुरू करेंगे? नहीं, पहले बुनियाद का इंतखाब जरूरी। जी हाँ, मजबूत बुनियाद चाहिए। मुझे रोजा रसूल के इर्द गिर्द एक मजबूत दीवार चाहिए जिससे कोई लोहा ना काट सके और ना ही कोई सरंग तोड़ सके। तो फैसला हुआ, सीसा पलाई हुई दीवार बना देते हैं ताकि उन्हें वाले लोग ऐसी जसारत करने का सोच भी ना सके। कब्रे अनवर के चारों तरफ गहरी खंदक खोदी गई। तारीख बताती है पानी की सतह यानी वाटर लेवल तक पहुंच गई थी। टनों के हिसाब से सीसा पिघलाया गया। फिर इस खंदक में पिघला हुआ सीसा डाला गया और जमीन के अंदर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी गई। ये दीवार आज भी 900 साल गुजरने के बाद रोज़ाए अथर के गिर्द एक पहरेदार की तरह मौजूद है। ना कोई सुरंग इसे पार कर सकती है और ना ही कोई आला इसे तोड़ सकता है। लेकिन याद रखें, ये वाहिद कोशिश नहीं थी। तारीख में 5 ऐसे बड़े वाकयात मिलते हैं जब दुश्मनों ने इस मुकद्दस मुकाम पर पहुंचने की नापाक जिसारत की। कभी मिस्र के पागल हुक्मरान अल हाकम भी अम्बरिल्ला ने कोशिश की तो अल्लाह ने मदीना पर ऐसा तूफान भेजा जिससे उनके लश्कर तबाह हो गए। कभी सलीबी जंजू रिनोल्ड ऑफ शातनंद ने बहरे अहमर में बहरी बेड़ा उतारा और कहने लगा, मैं तुम्हारे नबी का जिस्म निकाल कर ले जाऊंगा और तुम मुसलमान मेरा कुछ नहीं कर सकोगे। मगर हर बार नतीजा एक ही निकला। अल्लाह ने अपने महबूब की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है, जैसा कि कुरान में इरशाद है, वल्लाहु यअसिमुक मिनन नास। अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। आज भी जब हम मदीना जाते हैं और उस सब्ज गुंबद को देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इस अमन के पीछे कितने पहरेदारों की कुर्बानियां हैं। ये वाकया हमें बताता है कि इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दावा नहीं बल्कि अमल का नाम है। जब भी नामूसे रिसालत पर आंच आएगी तो अल्लाह किसी न किसी नूरुद्दीन जंगी को खड़ा कर देगा।